Students, I am Udit Mittal, Head of IT Department, welcomes you all in the video series of computer-based numerical techniques. Today we will discuss about the introductions to the errors and their types. First of all, we will discuss about what is an error. An error is the difference between the value of a number and its approximate value. Means we can say the difference between the true value and the approximate value is called an error. Suppose we are just taking some fraction part of particular value, we are just neglecting the original value, then we can say that particular difference may be called as an error. Another definition is error is any value which is because of the accepted minor difference from the exact value to the number. Yes, errors are accepted. Means when we are taking a number and we are just cutting short it for the manipulation purposes. Like हमने कोई एक छोटा सा नंबर लिया है, कोई एक नंबर लिया जिसमें कि फ्रैक्शन पार्ट की यानी पॉइंट के डेसिमल के बाद काफ़ी ज़ीरोज़ जा करके और बाद में वैल्यू मिल रही है, या हमारे पास पॉइंट के बाद भी कोई वैल्यू मिल रही है, तो देन फॉर आर कन्वीनियंट इन कैलकुलेशन हमने बेसिकली उसको कट शॉर्ट कर दिया. जब हमने कट शॉर्ट कर देते हैं, या जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया 0.3333 को नॉर्मली हम 0.34 भी कंसिडर कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो आगे आने वाली कैलकुलेशंस हैं वो इजी हो जाएं. बट द एक्चुअल वैल्यू वाज 0.3333 एंड ऑन, बट वी हैव टेकन 0.34. मीन्स सच टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस, जो भी एक्सेप्टेंस आई है, जो वैल्यूज़ आपने नई वैल्यूज़ ली हैं अपने कैलकुलेशन को, अपनी मॉडिफिकेशन को इजी करने के लिए, वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बेसिकली एरर कहलाता है. लाइकवाइज इन 0.3333 में बी कंसिडर्ड एज 0.34. नाउ द डिफरेंस इज ऑफ 0.01. then we can say that 0.01 is an accepted error in this particular number. So errors are basically because of the choice of the user, selected numbers of the user, या basically कुछ errors ऐसी होती हैं जो कि already statement में present रहती हैं. Now we will discuss about how many types of errors are there in the mathematics. In this section we will read about there are 5 major type of errors. First one is absolute error, second relative error, percentage error, inherent error and truncation error. In absolute error, if say x a, हमने यहाँ पर x एक वैल्यू को लिया है and a for exact number, okay, the approximate value of an exact number, and एक्स टी हमने ली है बेसिकली एग्जैक्ट नंबर के लिए. एक्स ए हमने लिया है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड एक्स टी लिया है हमने एग्जैक्ट नंबर के लिए. देन द एब्सोल्यूट एरर विल बी डिनोटेड बाय ई ए, ई फॉर एरर एंड ए फॉर एब्सोल्यूट एरर. देन एरर ऑफ एब्सोल्यूट विल बी डिफाइंड बाय द डिफरेंस बिटवीन द एग्जैक्ट वैल्यू माइनस approximate value. And remember, we are just calculating the difference only. We are just not focusing whether it is of positive sign, whether it is of the negative sign. We are just calculating the difference, because in the computer based numerical techniques mostly we will also work with the negative values, positive values, and in normally mathematics ऊपर नीचे तो values होती रहती हैं. 0 से ऊपर जाती हैं तो positive side रहती है, 0 से नीचे जाती हैं तो minus side रहती है. तो वैल्यूज़ कभी ऊपर आती हैं कभी नीचे आती हैं, तो ईच एंड एवरी टाइम इट इज़ नॉट वेरी पॉसिबल टू मेक श्योर कि वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, या एरर जो है वो माइनस की है या पॉजिटिव की है. एरर इज़ एन एरर. एरर जो है वो एरर ही कहलाती है, भले ही वो पॉजिटिव साइड की हो, भले ही वो नेगेटिव साइड की हो. तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर एक फार्मूला डिफाइन किया है, द एरर ऑफ एब्सोल्यूट यानी ई ए इक्वल्स टू एग्जैक्ट नंबर माइनस द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इनसाइड द मॉड्यूलस ऑपरेटर, बिकॉज मॉड्यूलस ऑपरेटर बेसिकली removes the sign of that particular value. Second one, in relative error. In relative error, it shows that how difference relates to the exact value. Yes, we have studied about the absolute error. अब हमें ये देखना है कि बेसिकली जो एरर है वो किस तरह से, यानी किस टर्म से एब्सोल्यूट वैल्यू के एग्जैक्ट वैल्यू के साथ रिलेट करती है, उसका एग्जैक्ट रिलेशन से क्या संबंध है, या एग्जैक्ट वैल्यू से वो किस तरह से रिलेट कर पा रही है. सो द फॉर्मूला विल बी ई आर, ई फॉर एरर, आर फॉर रिलेटिव. ई आर इक्वल्स टू
एब्सोल्यूट एरर, जैसे कि ऊपर से आपने देखा एब्सोल्यूट एरर, एंड डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू। सो हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर दिया एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, सो दैट वी कैन सी द रिलेशनशिप बिटवीन द एब्सोल्यूट एरर विद द रिस्पेक्ट टू द एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम यहाँ पर डिवाइड करने के बाद एक जो भी एरर पाएंगे वो बेसिकली एक रिलेशन को शो करेगी कि उस एरर का, उस पर्टिकुलर एरर का उस एग्जैक्ट वैल्यू के साथ क्या रिलेशन रहा है। मूविंग अहेड, इन परसेंटेज एरर बेसिकली शोज द परसेंटेज रिलेट्स टू द रिलेटिव एरर। अब हमने यहाँ पर धीरे धीरे पहले पढ़ा एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एरर, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले परसेंटेज एरर। बेसिकली समटाइम्स व्हाट हैपेंस, द वैल्यू ऑफ द रिलेटिव एरर इज़ वेरी स्मॉल, वी हैव टू फाइंड आउट इट इनटू द परसेंटेज। लाइकवाइज जैसे कि हम किसी भी चीज़ को परसेंटेज में शो करना चाहते हैं, कोई भी एक पॉपुलेशन है, किसी भी तरह का मार्क्स सिस्टम है, तो हम उसको बेसिकली परसेंट में शो करना चाहते हैं ताकि एक अजम्पशन में डिज़ाइन की जा सके उसके बेस पे। तो बेसिकली परसेंटेज एरर बेसिकली आर the percentage of the relative errors. So first of all we have to find out the relative error, means ER we have to find out, and then we will multiply it with the 100, because to find out any percentage with the find out the percentage of any number we have to multiply it with the 100. So the formula will be E of P, E for error and P for the percentage, that will be equals to error of R, means relative error multiplied with the 100. Here again approximate value will be XA and the exact number will be XT. ER will be relating to the relative error. Okay. Next, in inherent errors, the errors which are already present in the statements of the problem before its solution are called inherent errors. Inherent errors are already present into the values. ये डिपेंड करता है कि वो वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं। हो सकता है कि पिछले वाले यूज़र ने जिसने आपको ये वैल्यूज़ आगे दी हैं, या जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमने ये वैल्यूज़ को उठाया है, ऑलरेडी वहाँ पर कुछ एरर थी। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल हम किसी रैली में गए और वहाँ पर लगभग एग्जैक्ट नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 45,609 पर्सन इकट्ठा हुए। हमने ऊपर से देखा भीड़ है और हमने बोल दिया कि लगभग 40 से 45 हज़ार आदमी होगा। एक एग्जैक्ट नंबर हमने पकड़ के ले लिया कि लगभग ये 42,000 के आसपास आदमी है, या 42,000 के आसपास ये गैदरिंग इकट्ठी है। तो ये जो डिफरेंस आया है ये बेसिकली स्टेटमेंट में आ गया, यानी अब हमने आगे कैलकुलेशन में जो दिया वो लिया कि लगभग वहाँ पर 42,000 की भीड़ थी, और हमने फिर उसको आगे एक वैल्यू मानते हुए प्रोसेस कर लिया। तो वो जो डिफरेंस हमने इनिशियल स्टेज में रख दिया अपने स्टेटमेंट में, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरेंट एरर। बाकी कैलकुलेशन के टाइम जो एरर्स आएंगी, जो कि हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, वो अलग चीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी दैट पर्टिकुलर एरर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्टेटमेंट और इन द प्रॉब्लम। सो सच टाइप ऑफ एरर्स आर नॉर्मली कॉल्ड द inherent errors. Such errors are arises due to the not the approximated data given due to the mathematical limitations. The solution of such errors are to consider the number of the high precision values. Yes, अगर हम पॉइंट की बात करें, अभी तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें कि हमने एक बहुत बड़े नंबर के बारे में बात किया, 1000 नंबर्स के बारे में बात किया। अगर हम यहाँ पर पॉइंट वाइज की वैल्यूज़ को ले रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर इस टाइप की एरर्स को दूर करने का तरीका ये है कि हम इसमें हाई प्रिसाइज वैल्यू को लें। हाई प्रिसाइज वैल्यू मीन्स जितना कोशिश हो सके उतनी ज़्यादा रिफाइन वैल्यू को, जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके उतनी ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू को जा करके हम आगे जा करके चूज़ करें, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस टाइप की एरर्स को इस तरह से दूर किया जा सकता है। And last one is truncation error. Truncation errors arises due to the some approximation in place of an exact mathematical process. यहाँ पर ध्यान देने लायक बात ये है कि अभी पीछे हमने बोला कि एग्जैक्ट वैल्यू से हमने अगर कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को एज्यूम किया है तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। यहाँ पर भी एग्जामिनर यहाँ पर भी बेसिकली यही कहा गया है कि एग्जैक्ट मैथमेटिकल प्रोसीजर से लेकर के बेसिकली अगर हम कोई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं तो वो बेसिकली ट्रंकेशन एरर कहलाती है। बट यहाँ पर हमारे पास एक लिमिटेशन है कि वी आर जस्ट कंसर्निंग ओनली विद द प्रोसीजर्स, मीन्स यहाँ पर हमारे पास एक प्रोसेस है। we are not just working with this simple or single data, we are just working with the numerical computation. Likewise in a series, a process, a procedure, किसी भी तरह से हम काम कर रहे हैं तो उस प्रोसीजर को अगर हमने कट शॉर्ट करके छोटा प्रोसेस कर दिया है, देन वो जो डिफरेंस आएगा वो ट्रंकेशन एरर में आएगा, ना कि वो एब्सोल्यूट एरर में जाएगा। एब्सोल्यूट एरर बेसिकली वर्क्स ऑन वेरी लो लेवल और वो सिंगल वैल्यूज़ के साथ काम करते हैं। लाइकवाइज
12.4444 को हमने लिख दिया 12.45, क्योंकि हम सिंगल वैल्यू के साथ काम कर रहे थे और सिंगल वैल्यू को ही हमने यहाँ पर एज्यूम करके लिख दिया, तो जो बेसिकली एरर आया वो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर हो गया। बट हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, e टू द पावर x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी, मीन्स दैट प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू बी एंड। और हमने इसको कह दिया लेट इक्वल्स टू एक्स, लेट से इट इज इक्वल्स टू एक्स, ऑब्वियसली that is not be to be calculated up to the infinity, we have to cut short somewhere, so हमने इसमें क्या किया, and if it is truncated into means हमने इसको truncate कर दिया, इस स्टेटमेंट को बेसिकली छोटा कर दिया है for the easiness for the computational purpose, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर के तो हमको रोकना ही है, हमने इसको बेसिकली ट्रंकेट कर दिया है किस में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इक्वल्स टू एक्स डैश, यानी हमने शुरू के बेसिकली 4 टर्म को लेकर के इस सीरीज़ का एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है और उसको बोला गया एक्स डैश। जाहिर सी बात है, हमने जो बोला, हमने जो एज्यूम किया वो एक्स डैश, जो एक्चुअल में था वो एक्स हुआ, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश, ये जो डिफरेंस बेसिकली निकल करके आएगा दैट विल बी कॉल्ड ट्रंकेशन एरर। एब्सोल्यूट एरर्स अलग हो गए, रिलेटिव्स एरर अलग हो गए, परसेंटेज एरर्स अलग हो गए, इनहेरेंट एरर्स अलग हो गए, और ट्रंकेशन एरर्स बेसिकली अलग तरह से काम करते हैं। सो वी विल बी कवरिंग सच टाइप ऑफ एरर्स, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ बेस्ड ऑन द एरर्स इन आवर लाइव लेक्चर सेशन. So this is all about the introduction about the errors. I hope that you have cleared about the errors introduction. Thank you so much.